Hello, I'm MD Munuddin. I'm a mathematics teacher at iSchool Academy. Today, I will discuss a very important topic. This is actually trigonometry in class 10th. चाहे वो कोई से बोर्ड हो, जैसे कि CBSE हो, ICSE हो और कोई भी स्टेट बोर्ड का हो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मज़ेदार से इसको हम सीखेंगे। कैसे इसको मज़ेदार बोलते हैं, ट्राइगोनोमेट्री क्यों पढ़ेंगे ये भी देखेंगे। प्रैक्टिकली विल लर्न ट्राइगोनोमेट्री बाय प्रैक्टिकल, बाय रियल लाइफ एग्जाम्पल। मैथमेटिक्स क्या होता है, जितना सारा रियल लाइफ एग्जाम्पल हम देखेंगे, हाँ, तो कनेक्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू कनेक्ट मैथमेटिक्स बाय आवर रियल लाइफ एग्जाम्पल, देन वी विल लर्न मैथमेटिक्स बेटर। So let us start mathematics with our real life examples. So this is my topic is trigonometry. So trigonometry क्यों पढ़ना है? हाँ, तो trigonometry एक अलग सा दुनिया होता है, एक मायाजाल होता है. You can't ignore this in our life because when you learn class in our class 10 trigonometry, then you will go to the class 11, then 10, 12, then you will go to the higher level of studies. चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और मैथमेटिक्स में तो होगा। तो ये ट्रिगोनोमेट्री को कभी भी तुम यू कान इग्नोर दिस सब्जेक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज सो काम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और भी इसको देखेंगे भाई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। सो लेट अस कंसीडर trigonometry. There are 4 chapters in our class 10th, and one by one I will write all the chapters, then I will discuss everything. Okay, first one is trigonometric metric ratio. Okay, first chapter is trigonometric ratios. Second chapter is trigonometric identities. Okay, similarly this is identities. Okay, third is trigonometric travels. Okay, this is all chapters are so important. Okay, last one is applications of trigonometry. जो चीज हाँ हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो applications of trigono. Okay, trigonometry. Okay, so one by one I will complete all the chapters. Okay, just you have to connect with me and you have to respond on my lectures. Okay, just so first chapter is trigonometric ratio, but I want to discuss about this. हाँ, trigonometry क्यों पढ़ना है, trigonometry क्यों पढ़ना है, ये सब चीज हमको देखना है. Just I will take a real life example, but you know this is my classroom. Okay, this is our classroom, so we can't create a building or a hill or a trees just like this. This is a building or a hill, or this is as like a bigger trees, long trees. So now I'm standing here. Okay, this is my plane. You can imagine as like this. This is my plane, but I'm standing here. But I want to measure the height of this building, height of this hill, height of this long trees. So how to measure of this building? This is the process. There are 2 processes. Okay, one process is you have to climb on the top of the building, then you will measure the building of the top of the building. So this is a process. But one of my another process, if I want to discuss about this, तो अगर तुमको बिल्डिंग का हाइट पता करना होगा, ठीक है ना, तो कैसे करेंगे? एक तो है मेरे तरीका जब हम यहाँ से उठ के एकदम टॉप फ्लोर में जा सकते हैं, लेकिन और एक तरीका है मेरे को नहीं जाने का, इतना दूर मेरे को जाने का नहीं है, इतना टाइम भी मेरे पास हाथ में नहीं है, काम है और भी काम है, तो कैसे करेंगे? तो हम अगर इधर जस्ट आई एम स्टैंडिंग हियर, I want to measure of the length of the building without climbing. So how to possible to this method? So this is the method we'll learn here. So that's why we have required another chapter, another branch of mathematics. This mathematics branch is called trigonometry. We'll learn here. So there are this is the topic. Is actually this is trigonometry. This is trigo. Okay, trigo means okay, tree means 3. Okay,
tree means 3 and this is gone. Okay, means measure. Okay, metron. Okay, sorry, this is metron means measure. There are 3, actually this is gone means sides. Okay, this is sides. Okay, and metron. Okay, metron means measure. Okay, this is measure. Actually this is the relationship between, this is the relationship between a triangle with angles and other sides. Okay, so this is the process we will learn here in trigonometry. We will learn at first. There are 3-4 chapters, one by one I will discuss here. First chapter is जो ये जो बिल्डिंग का मेरे को हाइट का अगर मेरे को यहाँ से अगर मापना है, मेजरमेंट करना है तो कैसे करेंगे? सो एट फर्स्ट वी हैव रिक्वायर द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज. सो हाउ टू डिफाइन द ऑल द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज आई विल डिस्कस हियर वन बाय वन. जस्ट यू हैव टू कनेक्ट विथ मी एंड तुमको जोड़ना है मेरे साथ विथ योर पैशनेट. ओके, आई लाइक दिस ऑल द स्टूडेंट जिसका पैशनेट बहुत अच्छा है, सिर्फ जुड़े रहो. नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चलो. तो पहला जो मेरा चैप्टर है, दिस इज ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो. व्हाट इज दिस? तो एक्चुअली रेशियो डिफाइन करना है. रेशियो कैसे डिफाइन करते हैं? अब इसको हम इसको हम दूर कर लेते हैं. पहले देखो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है. आज तो हम दुनिया में, अब इसको हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट बोलने का मेरा तरीका नहीं है. जो सिस्टम को अच्छे से कैसे आया है क्योंकि क्लास 10 पे हम जब पढ़ रहे हैं ना, तो चीज हम लोग कैसे आते हैं, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ हम इसको डिस्कस करेंगे. तब ना मैथमेटिक्स में मजा आएगा. तो हम इसका यहाँ रेशियो डिफाइन करने का है, ठीक है ना. तो फिर देखो वही चीज हम यहाँ दोबारा बोलते हैं. भाई ये देखो मेरा बहुत बड़ा एक हिल है, यहाँ मेरा बहुत बड़ा एयरपोर्ट है. अगर यहाँ से मेरे को जाना है, ठीक है ना, वापस मेरे को जाना है, तो हाउ टू क्रॉस दिस हिल? सो यू हैव टू एट फर्स्ट यू हैव टू मेजर द हाइट ऑफ द हिल. ओके, सो कैसे मेजर करना है? मतलब मेरे को एक प्लेन लेना पड़ेगा, मतलब बेस लेना पड़ेगा. तब क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ हम मेजर कर सकते हैं what is the height of this hill, what is the height of the big trees, what is the height of the building. That's why we have required another chapter, another branch of mathematics. This branch is trigonometric. Okay, trigonometric ratio. So ये देखो यहाँ क्या मिल गया हम लोगों को, एक राइट ट्रायंगल मिल गया है. अब क्या कर रहा है? हिपार्कस इज द फादर ऑफ द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो. ट्राइगोनोमेट्रिक हिपार्कस पहले क्या कर रहा था, बहुत सारा, वो पागल आदमी का कोई काम था नहीं दुनिया में. क्या कर रहा था? उसका काम नहीं था, मतलब देखो क्या कर रहा था वो बच्चा लोग है ना, जो जिसका काम नहीं था, पागल इंसान, वो क्या कर रहा था, देखो बहुत सारा ऐसे ट्रायंगल ले रहा था. बहुत सारा ये ट्रायंगल ले रहा है. देखो मैं बहुत सारा ट्रायंगल ले रहा हूँ. देयर आर सो मेनी ट्रायंगल एंड डिफरेंट साइज. यू नो ऑल द ट्रायंगल्स आर डिफरेंट साइज. मैं ज्यादा ले नहीं लेता हूँ, 5 ट्रायंगल ले रहा हूँ. उसके बाद देख रहा हूँ, देखो उसके बाद देखो और हर नाम दे देता हूँ. दिस इज A1, B1, C1. दिस इज A2, B2, C2. ओके, दिस इज A3, दिस इज B3, दिस इज C3. दिस इज A4, दिस इज B4, दिस इज C4. okay, this is A5, this is B5 and this is C5. क्या मिला? देखो ये सब क्या है, राइट ट्रायंगल है. और मेरे को पता है हर ट्रायंगल का साइड पता है. वी नो ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. तो ट्रायंगल का साइड मतलब दिस इज ए रियल नंबर. तो रियल नंबर मेरे को अगर बहुत सारा रियल नंबर मिल जाएगा तो क्या कर सकते हैं, उसको हम गुना कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, जो चीजें हैं, जो फंडामेंटल चीज हम लोग को पता है वही भी कर सकते हैं. तो वही उसका काम नहीं था, रूम पे बैठे बैठे ऐसा ही कर रहा था, बहुत सारा चीज वो देख रहा था. पहला जो देख रहा है वो जिंदगी में वो देख रहा है जो जितना सारा रेशियो बने हैं. और एक चीज बोल दे रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली परपेंडिकुलर. ओके, this is hypotenuse. Okay, this is hypotenuse, this is perpendicular, this is base. Okay,
तो एक रेशियो बना रही है। रेशियो कैसा, देखो रेशियो बना रही है। पहला एक रेशियो देखो, अगर वो एक रेशियो बहुत सारा रेशियो करने के बाद एक रेशियो मिल रहा है उसको, एक स्पेशल रेशियो उसका आंखों के सामने उसको मिल रहा है। कैसे, देखो पहला रेशियो क्या बना रही है, दिस इज A1B1 बाई A1C1। क्या, दिस इज एक्चुअली A1B1 मतलब A1B1 मतलब दिस इज एक्चुअली हाँ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ये एक रेशियो बना रहा है। रेशियो तो हम बहुत सारा बना सकते हैं, एक एक करके हम सब डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है जब हम एक बोलेंगे बाकी सब तुम लोगों को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स सब कुछ डिस्कस करेंगे एकदम बेसिक से, सिर्फ तुमको मेरे साथ जोड़ना होगा। फिर देखो और एक, हाँ तो ये फर्स्ट ट्रायंगल के लिए है, बाकी दो और तो 5 है ना। फिर उसके लिए देख रहा है जो भाई ये अगर करेंगे तो कैसा होगा। हाँ, if I do the similar pattern to every triangle, then what you will get here? Okay, just listen and just you have to focus this. Okay, so this is actually this is A2 B2 by what is this? This is A2 C2, and this is similar pattern. This is A3 B3, and this is another pattern. This is C3 and C3, and this is, अगर मैं if I consider there are so many triangles, okay, so we'll get as like this ratio. Okay, what I say, there are so many ratios, but you know what is the musical fact here? You know, this is the musical fact, all the ratios are so similar ratios. Okay, similar ratio, this is the most important point, you have to understand this process. Okay, जो हिपरकस ने पहले देखा जो भाई ये सब क्या है, ये क्यों हो रहा है, हाँ ये क्यों हो रहा है, इसका this ratio and this ratio and this ratio, all ratios are maybe there are correlated to each others, you know, क्या मजा आ रहा है ना। हाँ, this is the process at first observed by Hipparchus। तो ये जो प्रोसेस है ना एक दिन पे नहीं आया दुनिया में, बहुत कोशिश करने के बाद, हार्ड वर्किंग करने के बाद, रात दिन करने के बाद इसको हिपरकस ने पहले बार देखा था। तो दिस रेशियो इज स्पेशल रेशियो by the concept of Hipparchus. So this ratio actually, this is nothing, this is actually similar ratio, similar. Okay, that's why this is same and this is also same, and this is, if I consider infinite number of triangles, obviously this will be same for not only 2 or 3 angles. Okay, साइज तुम कुछ भी लो, कुछ भी लो, ट्रायंगल का हम कुछ भी कितना सारा साइज ले ना, ये भी अगर इसको भी हम देखें तो भी वो इक्वल होगा। साइज, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन साइज, इट इज डिपेंडेंट ऑन दिस रेशियो। ओके, सो दिस रेशियो इज स्पेशल, this is ratio is special, that's why we have required a special name of this ratio. This ratio according to the Hipparchus, okay, he said that ratio is sine, okay, sine of theta. Actually theta हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं कुछ किसी एक एंगल के रेस्पेक्ट में, दिस इज एक्चुअली थीटा। ओके, दिस इज एक्चुअली एंगल ऑफ थीटा। ओके, तो क्या बोल रहे हैं, दिस इज एक्चुअली साइन ऑफ थीटा। साइन का जन्म ऐसे हुआ था, हम लोग बोल देंगे भाई साइन थीटा इज इक्वल टू दिस इज, नो नो नो, दिस इज एक्चुअली, दिस इज रॉन्ग प्रोसेस। When we want to learn mathematics, you have to learn from basic, then you will learn, okay, then you get a musical fact in mathematics, otherwise you'll go to a deep. Okay, so this is the process, जन्म होने का तरीका साइन थीटा। साइन एक्चुअली क्या होता है, साइन आपस में एक रेशियो होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ओके, सो दिस रेशियो इज कॉल्ड साइन थीटा। नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे और भी बहुत सारा रेशियो हम डिफाइन कर सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल, ये तो मेरा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस था, अगर बेस बाय हाइपोटेनियस अगर करेंगे तो क्या होगा, मेरे साथ जुड़े रहो, देखो मेरे साथ देखो, अगर मेरा फिर भी देखो और भी एक रेशियो, चलो इसको, ओके, तो ये मेरा रेशियो एक था, फिर देखो और एक रेशियो बना सकते हैं ना। क्या बना सकते हैं, देखो इसको अलग से कलर लेते हैं, जैसे कि पेन का कलर
रेड लेते हैं, ठीक है। फिर देखो दिस इज B1C1 बाई क्या, दिस इज A1C1, क्या लिख सकते हैं ना, ये भी क्या होगा B1 B2C2 बाई A2C2, and it is a similar pattern, it follows this system. This system is a new process, okay, this similar process, and this ratio is a special ratio, that's why इसका भी अलग से नाम होना चाहिए ना, मेरा भी नाम है, आप जो इस मेरे वीडियो में देख रहे हैं ना, आपका भी कोई स्पेशल नेम है ना, लेकिन मेरा नाम स्पेशल नहीं है। मेरा नाम, जो मेरा नाम मोमिन है, किसी दुनिया में कोई भी दुनिया में कोई ना कोई है जो उसका भी नाम मोमिन है, आपका भी नाम कोई भी है, तो देखो कि तुम्हारा नाम भी कोई भी दुनिया में है, लेकिन देखो साइन और कॉस से ये जो मैंने रेशियो यहाँ जो डिफाइन किया है ना, इसका नाम साइन है तो साइन है, दुनिया में और किसी का साइन नाम नहीं है। हाँ, तो दिस इज द स्पेशलिटी। हम लोग का रेस्पेक्ट इतना नहीं है, लेकिन इसका रेस्पेक्ट देखो कितना, इस मैथमेटिक्स में इसको कितना रेस्पेक्ट दिए, तो वही बात है। तो फिर ये स्पेशल रेशियो का अलग से नाम होना चाहिए, तो दिस रेशियो इज कॉल्ड cos ऑफ थीटा with respect to theta, okay, this ratio is called cos of theta, okay, similar pattern we can define, okay, so we can define tan of theta is equals to AB by AC, that means this is perpendicular by base, okay, so ये था sin theta, cos theta and tan theta, all that trigonometric ratio, ये सब trigonometric ratio है जिसका जन्म दुनिया में ऐसा हुआ था। अब हम देखेंगे बाकी सब जितना सारा ट्राइगोनोमेट्री का रेशियो है, सब कुछ हम यहाँ अगले स्लाइड में देखेंगे, और उसको कैसे याद में रख सकते हैं और उसमें कैसे प्रॉब्लम आएगा। हाँ, क्योंकि हम तो पढ़ लिए हैं, लेकिन CBSE बोर्ड हो और कुछ भी बोर्ड हो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम कैसा आएगा, उसको प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना चाहिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन उसको भी हम देखेंगे। सिर्फ तुम जुड़े रहो, भागना मत, ठीक है। सो बाकी जो पार्ट था ना, जो बाकी जितना सारा मेरा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियोज था वो भी देख रहा हो। तो क्या है, जो साइन थीटा मेरे को मिला, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ये मेरा स्पेशल एक रेशियो था जिसको बोलते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय रेशियो। फिर देखो cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू क्या, दिस इज बेस बाय हाइपोटेनियस। फिर मेरे को क्या बोला भाई, tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, हाँ, परपेंडिकुलर बाय बेस। दिस थ्री रेशियोज, हाँ, इन मैथमेटिकली we can say this is are the fundamental trigonometric ratios, okay, some mathematicians are says that sin theta and cos theta is fundamental and tan को वो बाहर कर देते हैं, तो tan क्या होगा, वो दुख बुरा हो जाएगा, वो उसका मन पे काम नहीं करेगा, तो हम सोच रहे हैं तीन को ही ले लेते हैं, तो तीन को ही बोलते हैं भाई ये दिस इज आर द फंडामेंटल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, ओके। फिर देखो ये जो रेशियो सब हम डिफाइन किए ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, क्यों हम इसको हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर क्यों डिफाइन नहीं कर सकते, ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो क्या होगा, वो रेशियो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, किसका, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर भी वो क्या, वो भी अलग एक स्पेशल रेशियो मिलेगा, तो उस रेशियो का हम बोलते हैं दिस इज एक्चुअली रेसिप्रोकल, ओके, रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, ओके। तो ये क्या होगा, इसको रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, इस रेशियो का हम बोलते हैं दिस इज कॉसेक थीटा, ओके। दिस इज न्यू रेशियोज इन ट्राइगोनोमेट्री, ओके। सो व्हाट इज दिस इज एक्चुअली कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट इज दिस इज हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। सिमिलरली इसका अगर रेसिप्रोकल ले, किसका, cos थीटा का अगर रेसिप्रोकल ले, cos थीटा का अगर रेसिप्रोकल ले, तो क्या होगा, हाइपोटेनियस बाय बेस, हाइपोटेनियस बाय बेस। तो दिस रेशियो व्हाट हैपन, दिस इज हाइपोटेनियस बाय बेस। तो इस रेशियो और भी एक स्पेशल रेशियो होता है, तो उसका अलग से नाम होना चाहिए ना, तो दिस रेशियो इज कॉल्ड सेक ऑफ थीटा, समझ में आया। फिर देखो अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूं, दिस इज रेसिप्रोकल लिया, इसका भी रेसिप्रोकल लिया, फिर अगर इसको रेसिप्रोकल लिया तो क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो इस रेशियो को बोलते हैं दिस इज कॉट थीटा, ओके। दिस आर 6
ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। सो स्टूडेंट को याद रखना है साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होना, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए। ये भी एक बहुत समस्या की बात है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट्स कैन रिमेंबर all this trigonometric with their ratios. So I'll discuss here one important trick. You can remember all the trigonometric ratios. Just you can you have to connect with me just like this. So just I'll write here one trick, okay, or just like this. पंडित बद्री प्रसाद हरे बोले, okay. So just I'll draw some boxes, okay. So what is this? This is actually sine, cos, okay, and this is tan, okay. So here ये जो मैं मंत्र लिखा है ना, हर जगह देखो, just take another pen. This is देखो, ये जो पेन मैंने लिए है ना, सॉरी, ये जो लेटर लिए हैं सब लेटर वर्ड में फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल लेटर है। इस कैपिटल लेटर को हमको देखना पड़ेगा। हाँ, तो इस कैपिटल लेटर को जो लिखे हैं, इस कैपिटल लेटर को दिस इज P and this is B and this is P, okay, and then this is H and this is H and this is P. So actually sine theta, what is this sine theta? Now we'll try to write the sine theta. What is this? Sine theta is equals to, this is perpendicular by hypotenuse, so that is equals to P by H, and cos theta is equals to, what is this, B by hypotenuse, and similar pattern as tan theta is equals to perpendicular by base. So this is the process. You can remember all the trigonometric ratios, and you know बाकी सब कैसे याद में रहेंगे, वो तो सिंपल है भाई। साइन थीटा मेरे को याद में है, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। साइन पता है तो मतलब कोसेक इसे बोल सकते हैं। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर reciprocal. This is reciprocal. You can determine reciprocal to any ratios. So this is a simple process, but just you have to remember these three trigonometric ratios. These three ratios are fundamental. First इसको define किए थे कौन? Hipparchus. This is the process. You can remember all the three trigonometric ratios. Okay. ये ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है ना। और बाकी की जो लेक्चर होगा कल फिर आएंगे। हाँ, तुम लोग फिर मेरे हिसाब से, टाइम के हिसाब से आ जाना। फिर ये ट्राइगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन था, जो ट्राइगोनोमेट्री का जो जितना सारा रेशियोज कैसे आया वो सिर्फ हम डिस्कस किए। अभी बहुत सारा चीज बाकी है सिर्फ। हाँ, अगले वीडियो में तुम देखोगी ये कितना कैसे प्रॉब्लम आएगा, किसी इसमें कितना जो सब जितना सब थ्योरी है, I will discuss all the theory in this chapter and I will cover all the problems in CBSE, ICSE और चाहे किसी भी बोर्ड में हो, हम सब कुछ यहाँ डिस्कस करेंगे एकदम one by one. Just you have to connect with me and मैथमेटिक्स को एंजॉय करो। ऐसे मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स को पढ़ना है विथ योर एंजॉयमेंट मोमेंट। ओके, ठीक है, चलो बाद में मिलते हैं।